हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤੇ ਸੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -1, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -1, 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -1, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -1 मतलब 48 है ना। क्वेश्चन तो ये आसान सी। सेकंड क्वेश्चन की है अ वॉच स्लोस बाय 3 सेकंड इन 4 मिनट। ठीक है जी, मतलब 4 मिनट विच एक वॉच 3 सेकंड स्लो है। ठीक है जी, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਲੋ ਹੋਊਗੀ, मतलब ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਮੀਨਸ 1 ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ, 45 ਸੈਕਿੰਡ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। मतलब 1 ਆਰ ਵਿੱਚ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਸਲੋ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, if the clock shows the right time at 8 AM then what time will it show at 11 PM on the same day। मतलब उन्होंने क्या जे 8 बजे घड़ी ने बिल्कुल सही टाइम दिता सी, ठीक है, 11 बजे वो की टाइम शो कर रही होगी। तो इत्थे देखा जाए किन्ने घंटे का गैप है, 9 तो 11 विच, सॉरी 8 तो 11 विच 15 आवर्स का, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, उस तो बाद आप जे इसनू किसदे विच कन्वर्ट करके रखिए मिनट विच, सेकंड विच है ना, तो कितना होगा 3/4 मिनट है ना। ते जे 15 घंटे है किन्ने दा डिले आ जाऊगा इंटू 15 मतलब मिनट। आप कह सकते हैं 11 मिनट 1/4 सेकंड, मतलब 11 मिनट 15 सेकंड का डिले है। टाइम किन्ना है 11 है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने ਦਾ डिले है 11 मिनट 15 सेकंड। मतलब ਕਿਹੜੇ वाली ऑप्शन होगी, की आंसर आऊगा 48 मिनट 45 सेकंड है ना। हुण तुसीं कैलकुलेट तो कर ही लोगे ये वाली कैलकुलेशन, जिवें 45 48 ते इत्थे की आऊगा 10। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो आपां नूं की क्या गया, 3 फ्रेंड्स है राज समीर ते विजय आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। 5 लोग है राज ते समीर दे विच, किन्ने लोग है 5। ठीक है जी, अगे की क्या गया, एंड 8 पीपल बिटवीन समीर एंड विजय। समीर ते विजय विच 8, 5 हो गए 6 7 8 मतलब 2 लोग है। ठीक, 5 6 7 8 ओके जी, 8 लोग हो गए। इफ देयर आर 3 पीपल अहेड विजय, अगर विजय दे अगे 3 लोग है, ठीक है जी, एंड 19 पीपल बिहाइंड राज, राज दे पीछे किन्ने लोग हैं 19। देखो 5 6 लोग तो ये हो गए है ना, मैं टोटल किन्ने बनाने हैं 19, मतलब इस साइड किन्ने लोग होंगे 6 हो गए तो किन्ने बचे 13। आप की कढ़ने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, 3 4 5 6 ते 5 11 12 12 ते 13 की आंसर आएगा 25। मैं किते गड़बड़ तो नहीं की, 6 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ते 13 26। मैं पहला काउंटिंग च गलती की थी, आंसर इज 26। क्लियर। नेक्स्ट इज आपन की क्या गया, 4 पर्सन है पी क्यू आर एंड एस।
are working in the same company. ठीक है जी, the sum of the income of P and Q is P ਤੇ Q ਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ R ਤੇ S ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ। sum of the income of P and R, P ਤੇ R ਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ Q ਤੇ S ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ। if P earns half as much of Q and S, ठीक है जी, देखो जी, ओके, P plus R is equal to Q plus S, ਤੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਹਾਫ Q plus S, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਫ Q plus S, मतलब P ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਗੀ। अगर P ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ Q ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, Q ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, क्लियर जी। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ लीप ईयर्स, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਪ ईयर्स ਦੱਸਣੇ ਹੈ। 1801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ईयर्स ਹੋਣਗੇ? 1801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣਗੇ? 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 24 ਲੀਪ ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣਗੇ? 25 ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣਗੇ, 24 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2001 ਆਪ ਵੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 24 plus 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 25। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ 24 plus 25 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ? 49, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ P, Q, R and S live in the same locality। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, the house of Q is in the east of P's house। ਜੇ ਇੱਥੇ P ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ Q ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है, बट मतलब Q ਦਾ ਹਾਊਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ R ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ R is in the west of S house। ठीक है जी, R ਦਾ ਜੋ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। the house of R is in the west of S house, मतलब S ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ S ਦਾ ਹਾਊਸ with respect to P ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन च आपां नूं की किया गया कि नीलम ने कुछ पार्टनर्स बनाने सी, ते ओदे विच की किया गया? नीलम likes to let her student choose who their partners will be for study during the course. However, no pair of student may work together more than 7 class period in a row. Anish and Boman had studied together 7 classes periods in a row. कैची एंड डोडो हैव वर्क टुगेदर। ठीक है जी, अनीश और बोमन जो सी उन्होंने 7 क्लासेस टुगेदर कीतियां। ठीक है, ते कैथी और डोडो ने 3 क्लासेस कीतियां। कैथी डजंट वांट टू वर्क विद अनीश, कैथी ने अनीश नाल काम नहीं करना। हु शुड बी असाइंड टू वर्क विद बोमन? ठीक है जी, हाँ जी, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੋਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਈਦਰ ਕੈਥੀ ਔਰ ਡੋਡੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, अगला क्वेश्चन की है, जदों टाइम 8:20 होगा तो दोनों हैंड्स विच एंगल किन्ने दा होगा? ते इत्थे आपां फार्मूला लगावांगे बाय 2 into 20, 30 into 8 minus 11 by 2। इत्थे सॉरी मिनट आना सी, मैं सीधा ही लिखता मिनट किन्ने अपने कोल 20, 10, 110, the answer will be 130 degree। किन्ने दा एंगल बन? हाँ जी, नेक्स्ट इज
in a day workshop the following 5 researchers are invited: G, H, J, K and L. ठीक है, each of the researcher will deliver a lecture of 1 hour. The 5 lecture need to be scheduled in 5 consecutive hours. The schedule for lectures is also constrained by the following conditions. ठीक है जी, जो H है, अब ये एनालिटिकल केड़ा क्वेश्चन है, ये एनालिटिकल पजल दा क्वेश्चन है जिदे विच की क्या गया। H जो है, H can't deliver a lecture, ठीक है जी, in any of the first 3 क्या बोला गया कि बोला गया अपने को 5 आवर्स है, 5 घंटे अपने को 1 2 3 4 ते 5। जो H है वो पिछले 2 घंटे विच या तो इत्थे आ जाऊगा या इत्थे आ जाऊगा, लेकिन पहले 3 घंटे विच H नहीं आ सकता। L जो है वो पहला लेक्चर लेंदा है किस तो, H तो। L ने पहला लेक्चर लेना है H तो, ठीक है। J must be take the lecture in any of the hour before G, ठीक है जी। J ने पहला आना है G तो, ठीक है जी। G जो है उन्हें पहला आना है K तो, ठीक। अपनी यह रूल्स और कंडीशन सी। 5 घंटे जो H है या तो 4th से आऊगा या 5th से आऊगा। L ने पहला आना है H तो, J ने पहला आना है G तो, ते G ने पहला आना है K तो। पहला क्या गया कि केड़ा अरेंजमेंट ठीक है। देखो J G K ये वाला तक गलत हो गया, ठीक है। J पहला आना चाहिए सी, H L बिल्कुल जी, लो जी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। J G K L H, L H, L ने पहला आना सी, सॉरी मैं बी मार्क करता, सी आंसर आना सी। L ने पहला आना सी ना H तो, मैं गलती नाल बी ऑप्शन मार्क करता सी। अगे देखो नेक्स्ट अरेंजमेंट तो अपना यही वाला रहा है ना। L ने पहला आना H तो, J G K जो H है वो या तो 4th पोजीशन ते आऊगा या फिर 5th पोजीशन ते आऊगा। अपन नु की क्या गया, अगर K डिलीवर्स द लेक्चर इन द 4th आवर, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, अगर K ने 4th पोजीशन ते आना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी मस्ट बी ट्रू, केड़ी चीज 100% ट्रू है, ठीक है। अगर K इत्थे आ गया तो आप कह सकते हैं G इत्थे, J इत्थे, L इत्थे हो सकता है, H ਲਈ ਤਾਂ यही जगह रहूगी, ठीक है। L 3rd पोजीशन ते आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये हो सकता है J इत्थे, G इत्थे, L इत्थे, K इत्थे, H इत्थे, है ना। मैं ये वाला चक रही है, ये हो सकता है। केड़ी चीज 100% ट्रू है वो दसना है। J डिलीवर द लेक्चर इन द 1st आवर, J पहले ते आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। H डिलीवर द लेक्चर 5th, हाँ जी। केड़ी चीज 100% ट्रू है, H वाली। बाकी सारियां दी सीट ऊपर नीचे हो सकती है, जो H है वो 4th या 5th पोजीशन ते ही आऊगा, तो आंसर केड़ा ट्रू है, बी वाला ट्रू है, ठीक जी। नेक्स्ट देखो यही वाला अरेंजमेंट, केड़ा अरेंजमेंट सी, K ने हाँ जी, L ने पहला आना H तो, ठीक, J G K, ठीक जी। If J doesn't deliver the lecture in the 1st hour, 1 2 3 4 5, अगर J ने इत्थे नहीं आना, ठीक है, तो केड़े चीज 100% ट्रू है। जे मैं सपोज करा J इत्थे, G इत्थे, K इत्थे, H इत्थे, L इत्थे, ठीक है। G doesn't deliver the lecture in the 3rd, नहीं, G हो सकता है, मतलब एक गलत है ना। H doesn't deliver the lecture in 4th, H इत्थे नहीं दे सकता, हाँ जी। J H इत्थे आंदा है, J इत्थे आ गया, G इत्थे आ गया, यह वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। H जो है वो 4th ते नहीं आ सकता, H नु 5th ते ही आना पऊगा, नहीं जी गलत कर रही है, ये भी ठीक है। ये हो सकता है कि H इत्थे आ जाए,
ਤੇ K ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, G ਇੱਥੇ, J ਇੱਥੇ, L ਇੱਥੇ, है ना। पर इन्होंने डजंट क्या, तो आ वाली चीज भी गलत होगी। जे डिलीवर द लेक्चर इन सेकेंड आवर, हाँ जी, जे सेकेंड आवर ते लेक्चर दे सकता है, बिल्कुल जी 100% ठीक है कि जे सेकेंड ते दे सकता है, क्योंकि डी ऑप्शन भी गलत होगी। उन्होंने की क्या कि के फिफ्थ पोजीशन ते नहीं आ सकता, नहीं, के फिफ्थ पोजीशन ते भी आ सकता है। तो 100% वाली चीज कड़ी सही हुई, सी पोजीशन वाली सही हुई। ये चीज सब तो ज्यादा कंफ्यूज कर दी है, तो ध्यान नाल आंसर करो। नेक्स्ट देखो, इफ H doesn't deliver the lecture, फिफ्थ लेक्चर, अगर H doesn't deliver the फिफ्थ लेक्चर, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, मतलब H इत्थे आ गया, है ना, J G L ते इत्थे की आजूगा, के आजूगा, ए भी हो सकता है, एल इत्थे, जे जी एच, के इत्थे आ गया, ठीक। जी डिलीवर द सेकेंड लेक्चर हो सकता है, जे डिलीवर द फर्स्ट लेक्चर हो सकता है, एल डिलीवर्स द फर्स्ट लेक्चर नहीं, कि क्या, इफ एच डजंट डिलीवर विच ऑफ द 100% ट्रू, के डिलीवर्स द फिफ्थ लेक्चर। बाकी सारा अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है ना, पर मैनू इन्ना पता है के ने फिफ्थ पोजीशन ते ही आना है, दोनों केसेस विच के ने फिफ्थ पोजीशन ते ही आना है, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इत्थे थोड़ा जिहा ऊपर नीचे हो गया, पर अपने कोल है की सी, एल ने पहला आना है जे तो, एच तो, जे जी के, ठीक। इफ जी डिलीवर्स द थर्ड लेक्चर 1 2 3 4 5, अगर जी ने थर्ड लेक्चर दिता, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो केड़ी चीज 100% ट्रू है, ठीक है। एल इज द ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर हु कैन टेक द लेक्चर। देखो जी, अगर जी इत्थे आ गया, जे इत्थे आएगा, है ना, और या एल इत्थे या जे इत्थे, या एल इत्थे या जे इत्थे, के ते एच, या एच इत्थे या के इत्थे, कुछ भी एवें हो सकता है। आपां नूं की क्या, एल इज ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर हु कैन टेक द फर्स्ट लेक्चर, नहीं, एल जे कोई भी हो सकता है, जे वन ऑफ द 5, देखो कि जे एक ही बंदा है जो कि सेकंड प्लेस पे आ सकता है, नहीं, एल भी आ सकता है। फिर अपन क्या, एनी वन ऑफ एग्जैक्टली 3 ना, अपने कोल 2 ही है जो सेकंड पोजीशन पे आ सकते हैं, ईदर वन ऑफ 2, मतलब डी वाला आंसर बिल्कुल ठीक होया। हाँ जी, असी इसी तरीके नाल थोनू सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहांगे जिवें भी कोई पेपर होगा, ठीक है। नायब दे असी सॉल्यूशन प्रोवाइड किते, आई होप थोड़े सब लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगले वाले आने वाले पेपर्स दे लिए। इसी तरीके नाल अपनी तैयारी चंगी तरीके नाल करते रहो, ते ओह कैंडिडेट्स जिन्हां ने पेपर दिता और डिटेल सॉल्यूशन तो देख के यह देख सकते हैं कि उन्हां लई अगे तो तैयारी किवें करनी है, किवें क्वेश्चंस नूं सॉल्व करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नायब तहसीलदार जो क्वांट का सेक्शन, जो कल आपका एग्जाम हुआ था, उसका कंप्लीट एनालिसिस प्लस जो भी आपका क्वेश्चन है उनका डिटेल सॉल्यूशन, कि किस क्वेश्चन में क्या हमें करना था, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए थी, कैसे हम क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर मैं क्वांट के सेक्शन की बात करूं तो पेपर हमारा बहुत इजी लेवल का था, कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया, द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द बेस डिक्रीज बाय 10%, द चेंज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम सिंपली क्या यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। जो x आपका इंक्रीज हुआ 20, डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव -20 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो 20 - 12
मतलब 8% इंक्रीज हुआ। अगर पॉजिटिव मिला दैट मींस एरिया क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब भी आपने अगर एजीज का टॉपिक पढ़ा है तो मोस्ट कॉमन है, पहले भी पंजाब के एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मारिया टेल्स हर डॉटर, आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वाज बोर्न, इफ मारिया इज 58 ईयर्स ओल्ड नाउ। अगर मारिया की एज अब 58 है, देन व्हाट वाज द एज ऑफ हर डॉटर 10 ईयर्स बैक। तो 10 साल पहले कितनी होगी। देखो अगर बर्थ के टाइम मारिया उसकी डॉटर की एज 0 है तो मारिया की एज कितनी होगी, x। आने वाले टाइम में जितने ईयर से अगर उसकी डॉटर इंक्रीज हुई है, मारिया भी उतने से इंक्रीज हुई होगी, मतलब मारिया की एज क्या हुई होगी, डबल। कितनी हुई, डबल हुई। तो x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 29। एट प्रेजेंट उसकी जो डॉटर है वो 29 ईयर्स की है, तो 10 ईयर्स पहले कितने की होगी, 19 ईयर्स की होगी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपका वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अगर वेन डायग्राम अगर हम यहां से बनाते हैं इसका, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा, ये क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल और थर्ड है आपका हॉकी। देखिए जब भी अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो हमेशा वेन डायग्राम के क्वेश्चन को जो ये तीनों का कॉमन पार्ट है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये उसने क्या दिया है, अगर हम इंफॉर्मेशन को पढ़ें, 20 प्लेयर्स प्ले बोथ, 15 बोथ, 5 प्लेयर्स कैन प्ले ऑल द 3 गेम्स। मतलब यहां जो डाटा आएगा वो आपका 5% आएगा जो तीनों गेम को खेलते हैं। उसके बाद 15% कैन प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, 15 बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। अब जो ये पार्ट है ये कंप्लीट 15 के लिए है, ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 15 बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये भी 15 है तो यहां 5 तो यहां कितना आ जाएगा 10। 20 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 20, यहां 5 तो यहां कितना आया 15 आ गया। उसके बाद उसने बोला था कि 50 प्लेयर्स कैन प्ले हॉकी, के 50 प्लेयर्स हॉकी खेलते हैं। देखो 10 + 5 15, 15 + 15 30, 50 में से अगर 30 माइनस करें तो सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने प्लेयर्स हैं आपके 20 प्लेयर्स हैं। 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी, के 75% ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं बट हॉकी नहीं खेलते, मतलब हॉकी वाले सर्कल से बाहर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये नंबर नहीं पता तो अभी कुछ कह नहीं सकते हम। उसके बाद 75% हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, मतलब इस पार्ट में टोटल 65 है। देखो 20 + 15 35, 65 में से 35 माइनस करूंगा तो 30, ये 40 और ये पूरा 75 था तो ये कितना आ गया 35। तो ये आ गया जो लोग कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी पर्सन प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, तो ये 35 + 30 65, 65 + 20 85, मतलब मैं यहां लिख भी देता हूं आपका 35 + 30 + 20, बस इतना सा क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम वैसे भी ऐड करें तो ये बना था 75, ये हो गया आपका 80 + 45, 125 ऐसे हैं जो क्रिकेट कुछ ना कुछ कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो हाउ मेनी पर्सन्स डू नॉट प्ले एनी गेम। अब 200 टोटल हैं, 125 खेल रहे हैं तो 75 ऐसे होंगे जो नहीं खेल रहे। हाउ मेनी पर्सन प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, एग्जैक्टली 2 वाला डाटा अगर मैं हम यहां से बात करें तो एग्जैक्टली 2 वाला डाटा क्या होगा आपका, ये देखो 10 + 10 + 15 तो 35, टोटल कितना बना 35। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाउ मेनी पर्सन कैन ओनली प्ले फुटबॉल, कैन ओनली प्ले फुटबॉल, सिर्फ ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं 30 लोग हैं 30, मतलब ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, सभी का आपको सही आंसर मिला होगा। हम बिल्कुल एकदम स्टीक और 100% एक्यूरेट डाटा आपके लिए लेकर आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन देयर आर 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, 5 गर्ल्स और 7 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन विद इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखो टोटल अगर उसको 6 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि 3 गर्ल्स होंगे और 3 बॉयज होंगे, तभी तो इक्वल बनेगा। आर टू बी सिलेक्टेड, तो 5C3 और इधर से क्या आ जाएगा 7C3। तो इसको सॉल्व करो, ये बनेगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो ये कितना बन जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 इंटू 35 मतलब 350। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टूडेंट इज प्रैक्टिसिंग सम मैथ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट आवर ही सोल्व 3 प्रॉब्लम्स। पहले 1 घंटे में 3 क्वेश्चन सोल्व किए। In the second hour, he solved 5 problems. In the third hour, he solved 7 problems and so on. What is the total number of problems solved by him in the 10 hours? 10 घंटे में उसने कितने क्वेश्चन सोल्व किए? देखो फर्स्ट आवर में अगर मैं बात करूं उसने 3 क्वेश्चन सोल्व किए, सेकेंड आवर में उसने 5 क्वेश्चन सोल्व किए, थर्ड आवर में 7 क्वेश्चन, फोर्थ आवर में 9 क्वेश्चन, फिफ्थ आवर में 11 क्वेश्चन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप, वैसे तो उसने सिर्फ 10 आवर्स पूछे हैं, तो आप डायरेक्टली अगर कुछ और ना समझ आए तो सभी को लिख के ऐड कर सकते हो, बट अगर उसने पूछा हो कि 100 आवर्स में कितने करेगा, 1000 आवर्स में कितने करेगा, ठीक है, अगर नंबर बड़ा हो तब कैसे करेंगे। तो इसमें आपका जो ये सीरीज बन रही है, ध्यान से देखो तो एपी सीरीज बन रही है, तो एपी सीरीज ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 10, ठीक है। तो एसएन क्या होता है आपका, एपी सीरीज का सम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 10/2 इंटू a की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6 प्लस 10-1 9 इंटू 5 9 इंटू 2 18। ये इसको डिवाइड करेगा सबसे पहले 5 पे, तो 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 120 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 24 इंटू 5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल x इज 200 मोर देन दैट ऑफ y एंड 70% लेस देन दैट ऑफ z। अगर सबसे पहले बात करें सीपी के रेशियो की, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बाकी क्वेश्चनों के कंपेयर में। एक्स वाई जेड उसने 3 वेरिएबल हमें दिए हैं, 3 आर्टिकल दिए हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इज 200 मोर देन वाई, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 3 होगा, एंड 75% लेस देन जेड। अब 75% मतलब कितना, 3/4 होता है, 75% लेस है तो ये 4 और 3 के रेशो में, ठीक है, मतलब उससे 3 कम है, तो ये कितना बनेगा 1 और 4, ये बनता है आपका 1:4। अब रेशो तो सेम रहेगा तो ये बन जाएगा आपका 3, ये 1 और ये बन गया 12। ये आपका बन गया सीपी का रेशो, ये क्या बन गया, सीपी का रेशो बन गया। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बोला, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्स इज 500 मोर देन जेड। अगर मैं यहां से एसपी की बात करूं कि जो ये 500 ज्यादा है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 6 होगा, ठीक है। If the profit on the article X is twice on the Y and is twice the loss on the Z, then what is the ratio of the profit on article Y to its cost price? अब देखो यहां से अगर हम बात करें, ये अगर आपका 3x, x और 12x है तो ये आपका y आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 6y - 3x प्रॉफिट हुआ।
यहां से जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 6y माइनस 3x का प्रॉफिट हुआ, और यहां से जो लॉस हुआ वो आपका 12x माइनस y का लॉस हुआ, क्योंकि लॉस क्या होता है CP माइनस SP और प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। अब उसने बोला था इफ द प्रॉफिट ऑन आर्टिकल X इज ट्वाइस ऑन Y एंड इज ट्वाइस द लॉस ऑन Z, और लॉस का भी ट्वाइस है, तो मैं अगर दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो इसको मल्टीप्लाई कर लूं। देखो अब यहां से क्या हो जाएगा 6y माइनस 3x किसके इक्वल आ जाएगा 24x माइनस y, y इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7y किसके इक्वल आ गया आपका 24x के। अगर यहां से मैं x और y के रेशो की बात करूं तो ये 7/24 आ गया। कितना आ गया 7/24। चलो x की वैल्यू पुट कर दें। अगर यहां x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 21 बन गया, ये कितना बन गया 7 बन गया, ठीक है। और y की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 6 इंटू 24, 6 इंटू 24, ठीक है। सॉरी 27 बनेगा, ये 27 बनेगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, 27 बनेगा, ये यहां पे गड़बड़ कर दी, 27 बनेगा। चलो तो ये हमारा था 6y, तो 6 इंटू 27 ये हो जाएगा 7 इंटू 6 42, कैरी 2 142, ये कितना बन जाएगा हमारा 142, नहीं गड़बड़ कर दी हमने, यहां भी 4 होगा ना, 62 बन जाएगा, 62 बन जाएगा, ठीक है 62। अब ये तो आ गया 162 और ये कितना आ गया 21 आ गया। अब देखो अगर मैं x के लिए बात करूं, इसका CP कितना आपका 21, SP कितना 162। अब अगर यहां से हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहां से प्रॉफिट कितना हुआ आपका, ये हो जाएगा 1 सेकेंड, कुछ और तो यहां से और कुछ तो गड़बड़ नहीं हुई हमारी, 2y। देखो यहां से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में, मैं इसको पूरे को ही रफ कर देता हूं, एक बार पूरे को रफ कर देता हूं, क्योंकि ये बन जाएगा आपका -2 8y बनेगा, ये 8y बनेगा 7y नहीं, और 27x, तो यहां से x और y का जो रेशो आ जाएगा आपका 27:8 आएगा, आपका आ जाएगा 8:27, 8:27। तो यहां पे जो ये हमारा 3x था तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो 162 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, 3 और 1, मतलब 138 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 138 का प्रॉफिट हुआ। यहां रखेंगे x की वैल्यू तो ये कितना बनता है 8 बनता है हमारा। वैसे भी देखो अब ऑप्शन या तो A है या C है। अब इसको डिवाइड बाय 2 करो तो 69 पे डिवाइड करेगा, तो उसने प्रॉफिट और उसका रेशियो पूछा था, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, अभिषेक इन्वेस्ट 10,000 एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% per annum for 5 years. The interest is paid annually, of which Abhishek spent half and keep the remaining in cash. In a box labeled B at home, to begin with, B had no money in it and nothing else except half of this interest income is added to the box. No money is removed from the B after 5 years if the cash in B is 2400. अब देखो अगर 2400 है, ठीक है, उसमें कैश कितना 2400 और ये कितना था हाफ था। अगर पूरी स्टेटमेंट को आप समझो ये हाफ था तो मतलब टोटल कितना मिला 4800 मिला, तो उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला 4800 कितने के ऊपर 10,000 के ऊपर इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपका 48% है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो SI होता है वो क्या होता है R इंटू T% ऑफ P होता है, मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होता है R इंटू T। R कितना दे रखा है 6, तो 6 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए 8, तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा 8, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 10 8 या फिर उसने अंदर भी दिया है 120 into 96 हैज टू बी टाइल्ड यूजिंग द सेम टाइप ऑफ स्क्वायर टाइल्स. स्क्वायर टाइल्स आर अवेलेबल इन वेरियस dimension 1 2 3 4 up to 48. What is the size of the largest square tile that can be used to tile the floor completely without breaking any tile? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज गिवन होती है ना, इनका HCF लेते हैं और इनका HCF क्या है 24. ऑप्शन बी मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था. उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर ध्यान से देखो तो देखो पहले क्या उसने दिया 7, क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर -2, फिर क्या दिया 22, 5 का स्क्वायर -3, फिर क्या दिया 44, 7 का स्क्वायर -5. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें नहीं पता. उसके बाद उसने दिया था 158, इस पे 13 का स्क्वायर -11. कुछ समझ आया? देखो प्राइम नंबर 3 5 7, बीच में एक नंबर गायब हुआ 11 का स्क्वायर 2 3 5 7 11. तो मतलब 11 का स्क्वायर 121 -7 तो 114. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, after completing a particular work Sumit and Suresh together earned 4340 rupees. However the earning are to be divided in the proportion of the work done by each other. देखिए टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज पता होगी कि जितना जिस एफिशिएंसी में वो काम करते हैं उसी एफिशिएंसी में उनको पैसा डिवाइड किया जाता है. आफ्टर द शेयर इज डिस्ट्रीब्यूट इट इज फाउंड दैट 8/15 ऑफ सुमित 8/15 ऑफ सुमित किसके इक्वल है 2/5 ऑफ सुरेश. ठीक है. यहां से अगर मैं रेशियो लूं तो ये इसको 3 पे डिवाइड करेगा और ये 4 पे डिवाइड कर देगा. तो एक चीज आ गई कि सुमित और सुरेश के जो अमाउंट का रेशियो है वो रेशियो क्या है आपका 3/4. मतलब टोटल 7 किसके इक्वल है आपका 4340 के. अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो पहले तो 6 पे डिवाइड करेगा, 7 × 6 42, फिर 2 पे और फिर 0 पे. और उसने सुरेश का पूछा था तो इंटू 4 कर लो तो ये आ जाएगा 2480. ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. ऑप्शन बी. चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बैग कंटेन्स 5 रेड 4 ग्रीन 6 ब्लू एंड 3 येलो बॉल्स. अलग अलग बॉल्स दिए हैं. 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of the balls drawn is blue? मतलब ब्लू बॉल निकालनी ही नहीं है, कोई भी ब्लू बॉल उसको नहीं लेनी. तो नहीं लेनी तो मतलब ब्लू को छोड़ दो, ब्लू को छोड़ दो. टोटल कितनी है 5 + 4 9 + 3 12. मतलब 12 में से कोई 2 लेगा, 12 में से कोई 2 लेगा. उसके बाद टोटल कितनी बनती है 18. तो 18C2 तो ये बन जाएगा आपका 12 × 11 डिवाइड बाय 18 × 17. 6 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 तो मतलब आंसर आपका आएगा 22 डिवाइड बाय 51. ऑप्शन मैच नहीं होते आपके, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा. आंसर होगा आपका 22 डिवाइड बाय 51. चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. रियान रन्स एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर मिनट. Rohit follow him after an interval of 5 minutes and run at a speed of 50 minutes per minute. Rohit dog runs at the speed of 60 meter per minute and start along with Rohit. The dog reach Rayan and then come back to Rohit and continue to do so till Rohit reach the Rayan. देखो स्टेटमेंट को अगर समझे तो क्या कह रहा है कि भाई यहां से इस पॉइंट से एक आदमी चलता है जिसका नाम क्या है रेयान. वो चलते 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 कहीं पहुंच गया इस पॉइंट पर. ठीक है. उसकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर मिनट और वो चला कितना 5 मिनट तक. मतलब 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. 200 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया. ठीक है. फिर अब इसी पॉइंट से एक पर्सन चलता है रोहित इसी डायरेक्शन में
और रोहित के साथ साथ उसका डॉगी भी चलता है इसी डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड क्या है 60, रोहित की स्पीड क्या है 50, मतलब डॉग की स्पीड ज्यादा है। डॉग क्या करता है, भाग रोहित से चलना शुरू करता है, भाग के रेहान तक जाता है, फिर रेहान से वापस रोहित तक, फिर रोहित से रेहान तक। वो कब तक ऐसा करता है, जब तक रोहित रेहान तक ना पहुंच जाए। तो अब रोहित अगर रेहान तक पहुंचना जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है 50 है, और रेहान की स्पीड क्या थी आपकी 40। तो उसको सिर्फ ये 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और स्पीड क्या है 10। तो मतलब कितना टाइम लगेगा उसको, 20 मिनट लगेंगे, और 20 मिनट तक डॉगी इधर उधर भागता रहेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1200 मीटर टाइम इनटू स्पीड। तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Two trains A and B are running in the opposite direction. Train A cross a man standing on a platform in 27 seconds, while B cross the same man in 17 seconds. If they cross each other in 23 seconds, the ratio of the speed of train A to that of train B. स्पीड का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल क्या दे रखा है 23, लगा दो एलिगेशन, ये आएगा 6, ये कितना आएगा 4, तो यहां से ये कितना आ जाएगा आपका 3:2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 100 आर डिविजिबल बाय 3। अब देखो अगर 100 तक हम 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर है 33। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर बनते हैं 20। 3 और 5 दोनों से मतलब 15 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर बनते हैं 6। तो इनको देख लो, टोटल कितने नंबर बनते हैं 53, और जिसमें से रिपीट होने वाले कितने हैं 6। तो 53 माइनस 6 किया तो आंसर क्या आ गया 47 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन ए बास्केट द रेशियो ऑफ ऑरेंज, गावा एंड जैक फ्रूट इज 2, 3, 5। राम एट 60% ऑफ द फ्रूट। क्या कह रहे हैं कि ये 2, 3 और 5 के रेशो में है। देखो कभी भी रेशो के बाद अगर कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो क्या करो, सिंपली सबके पीछे एक जीरो चिपका दो, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। उसने बोला कि भाई उसने 60% फ्रूट क्या ये खा लिए, टोटल फ्रूट कितने हैं 100, मतलब 60% की अगर मैं बात करूं तो 60 फ्रूट वो खा चुका है, 60 फ्रूट वो खा चुका है। उसके बाद एंड 40% ऑफ गावास आर रिमेनिंग इन द बास्केट। 40%, ठीक है, 40% रिमेनिंग है। 60% ऑफ द फ्रूट्स, राम एट 60% ऑफ द फ्रूट इन द बास्केट, 40% ऑफ द गावास आर रिमेनिंग, मतलब अगर 40% रिमेनिंग है तो कितने रिमेनिंग है 12, ठीक है, कितने रिमेनिंग है 12। तो उसने खाए कितने 18, वो खा चुका है, 18 वो खा चुका है। एट लीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ जैक फ्रूट्स डिड राम ईट, तो जैक फ्रूट कितने खाए थे, मतलब यहां से उसने कितने खाए थे। हम मानते हैं कि ये भाई उसने सभी के सभी खा लिए होंगे, ठीक है, ये सभी के सभी खा लिए, तो 20 प्लस 30 18, तो 38 उसने खा लिए 60 में से, 38 वो खा चुका है, तो बचे कितने 22। तो 22 को आप कैलकुलेट करो कितना 50 के ऊपर, तो मतलब उसने जो जैक फ्रूट है वो एटलीस्ट 44% खाए हैं। कितने खाए हैं 44%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 6 डिजिट नंबर ABCDEF is reversed to get a new number FEDCAB. The two numbers are added to get answer this. अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एक सिंगल डिजिट का नंबर है। ये क्वेश्चन अच्छा था, पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था आपके मैथ के सेक्शन का। ABCDEF, फिर वापस कर रहे हैं FEDCB और A, इनको ऐड करने के बाद क्या कहता है कि एक नंबर मिला 4, 8, x, 3, 7 और 4। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत थी, थोड़ा सा बस अप्रोच के साथ काम करना था अपने को
कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो क्या है, सेम। मतलब ए और एफ की आपने जो भी वैल्यूज रखी होंगी, ए और एफ की जो भी वैल्यूज रखी होंगी वो सेम ही रही होंगी। ठीक है, कि जिसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहां से सपोज ये अगर 14 का 4 होता तो भाई यहां भी तो फिर ये बड़ा नंबर बनता ना। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि यहां सिंगल डिजिट के नंबर थे। उसके बाद देखो ई और बी, इनका सम 7, यहां इनका सम 8, मतलब कुछ तो आगे बढ़ा, कुछ तो आगे बढ़ा। कुछ आगे बढ़ा कब, जब यहां से कुछ बड़ा नंबर होगा। अगर यहां सिर्फ 1 और 2 3 होता तो यहां भी 3 आता आपका, कुछ कैरी होगा ही नहीं। तो मतलब ये क्या बना होगा, 13 बना होगा। कितना, 13 बना होगा। और ये 7 और ये 6, 13 आ गया। तो उसके बाद ये 13 प्लस 1 कैरी वाला, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 4 बनेगी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ए टैंक हैज 3 पाइप x, y एंड z। x पाइप है, y है और z पाइप है। ठीक है, पाइप x एंड z अलोन कैन फिल द टैंक इन 4 and 8। ये 4 आवर्स में फिल करता है, ये 8 आवर्स में फिल करता है, और पाइप इसको एम्प्टी करता है 6 आवर्स में। अगर मैं एलसीएम लूं, एलसीएम 24, x की एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी -4 और z की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, द 3 पाइप्स आर ओपन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इन द फर्स्ट आवर ओनली पाइप x इज ओपन, मतलब पहले घंटे में सिर्फ x ओपन होगा तो वो 6 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, इन द सेकेंड आवर x एंड y, तो मतलब यहां से सिर्फ कितना पानी भरा जाएगा, यहां से सिर्फ आपका 2 लीटर पानी भरा जाएगा, क्योंकि अगर उसने 4 भरा तो उसने 2 निकाल दिया। इन द थर्ड आवर पाइप y इज ओपन, और थर्ड में अगर हम बात करें तो पाइप y ओपन होगा, तो मतलब -4 हो जाएगा। इन द फोर्थ आवर पाइप y एंड z आर ओपन, पाइप y, तो फोर्थ आवर में भी अगर हम बात करें तो ये -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। इन द फिफ्थ आवर z इज ओपन, z कितना 3, z कितना आपका 3। तो देखो कि ये 8 + 3 11 में से अगर माइनस करें तो 6, कितना आ गया 6, कि भाई 5 घंटे में 6 लीटर पानी भरा जाएगा। 5 घंटे में 6 लीटर पानी भरा जाएगा। भरना कितना है, 24, तो कितना टाइम लेगा, 5 × 4 20 घंटे। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनील, परम एंड विकास ड्राइव एट 20 km/h, 50 km/h एंड 80 km/h रिस्पेक्टिवली। सुनील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए फॉर पॉइंट बी। ठीक है, सुनील, ये 3 लोग हैं जो चलना शुरू करते हैं। सुनील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए फॉर पॉइंट बी। सुनील की स्पीड कितनी है हमारे पास, 20। सुनील की स्पीड कितनी है, 20। ठीक है, परम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए आफ्टर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में इसने आपका 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कवर कर लिया होगा, मतलब ये यहां पहुंच चुका होगा 40 किलोमीटर। एंड विकास लीव्स सम टाइम आफ्टर परम, और विकास ने परम के भी कुछ देर बाद चलना शुरू किया। बोथ परम एंड विकास ओवरटेक सुनील एट द सेम टाइम, और जो परम और विकास है वो सुनील को सेम टाइम पे ओवरटेक करते हैं। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर सुनील डज विकास लीव, तो विकास ने कितने बजे छोड़ा था, ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि भाई परम इसको पकड़ेगा कितने टाइम में, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और इनकी जो स्पीड है, स्पीड का डिफरेंस कितना है, 30 × टाइम, मतलब वो इसको पकड़ने के लिए 4/3 आवर्स लेगा। ठीक है, पकड़ने के लिए कितना टाइम लेगा, 4/3 आवर्स, यानी कि 1/3 के इतने घंटे में वो पकड़ लेगा। ठीक है, अब अगर हम एक चीज यहां से अगर हम ध्यान से देखें, अब यही डिस्टेंस किसने कवर किया, यही डिस्टेंस आपका किसने कवर किया। अगर आप इसको बनाओगे तो ये कितना बनेगा, 80 मिनट बनेगा। कितना बनेगा, 80 मिनट बनेगा। ठीक है, अब यही डिस्टेंस जब आप अगर
विकास के साथ कंपेयर करोगे, यही डिस्टेंस जब हम विकास के साथ कंपेयर करेंगे तो उसने कितने टाइम में कवर किया है, उसने कितने टाइम में कवर किया है, तो इसमें देखो उसकी स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 20 किलोमीटर पर आवर, और विकास से कंपेयर और परम से कंपेयर करें तो 50 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज को आप यहां से ध्यान से देखो, अब अगर आपका सुनील यहां पे है तो यही डिस्टेंस तो किसने कवर किया, आपका परम ने भी कवर किया, और यही डिस्टेंस आपका किसने कवर किया, विकास ने भी कवर किया। और अब विकास की स्पीड आपके पास है, अगर मैं यहां से बात करूं कि कितने टाइम में वो ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि डिस्टेंस जो ये कवर करेगा ये आपका 50 मिनट में कवर करेगा। कितने में? 50 मिनट में, ठीक है। 50 मिनट में अगर वो कवर करेगा तो मतलब 30 मिनट बाद चला होगा। 50 मिनट में कवर किया तो मतलब 30 मिनट बाद, तो 2 आवर्स ये थे और 30 मिनट ये, तो 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे के बाद वो चलेगा। कितना? 2.5 घंटे के बाद वो चलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, रेखा मेड ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन टू एक्सरसाइज ऑन 1 जनवरी, पहली तारीख को वो 7 बजे घर से निकलती है और 7:32 पर वापस आती है। शी वेंट फॉर ए जॉग फॉर होम टू नियर बाय पार्क एंड बैक, मतलब पहले दिन उसने जॉगिंग की और उसने टोटल 32 मिनट लिए, मतलब एक साइड को उसको टोटल एवरेज कितना टाइम लगा होगा, 16 मिनट। सेकेंड डे की अगर हम बात करें, ऑन Jan 2 at 7 AM she went jog to the park but this time she walked back, मतलब उसने अब जॉगिंग और वॉकिंग दोनों किया और अब वो 7:40 पे घर आई है, तो मतलब 40 मिनट लिए, तो एवरेज कितना अगर हम यहां से बात करें, देखो कितना आ रहा है, जाते हुए उसको लगे 16 मिनट, वापिस आते हुए उसको कितना लगा होगा, टोटल 40 लगा ना, वापिस आते हुए उसको कितना लगा होगा, 24 लगा होगा। ऑन द Jan 3 she went out at 7 AM but this time she walked both ways, at what time did she return home, मतलब अब उसको डबल कर दो तो आने और जाने में 48 मिनट लगेंगे। 48 मिनट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन डी, मतलब वो 7:49 से पहले पहले घर वापस आ जाएगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन बाइंग ए पेन द शॉपकीपर गिव्स 3 रिफिल्स फ्री, कि एक पेन के ऊपर 3 रिफिल फ्री दिए, एंड ऑन बाइंग ए पेन एंड 6 रिफिल द शॉपकीपर गिव्स एडिशनल 4 रिफिल फ्री, इफ द इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज सेम इन बोथ केसेस, डिस्काउंट जो मिला वो सेम मिला, देन हाउ मेनी रिफिल विल इक्वल इन वैल्यू टू ए पेन। देखो 3 रिफिल मिले हैं एक पेन के ऊपर, ठीक है, इंटू 100 करने का कोई फायदा नहीं, कैंसिल हो जाएगा बाद में, और 4 रिफिल फ्री मिले हैं कब, जब उसने एक पेन और 6 रिफिल खरीदे हैं, 6 रिफिल, कितना, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18r² इज प्लस 3rp, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4rp के। तो यहां से अगर rp की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, rp रिफिल और पेन rp, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 18r² के, ठीक है। एक r से ये कट जाएगा, मतलब एक पेन कितने के इक्वल है, 18 रिफिल के प्राइस के इक्वल है, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ कॉलेज एक्स एंड वाई, कॉलेज हमारे पास दे रखे हैं, इनके बीच का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। रीड द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट प्लेस्ड फ्रॉम 3 इंजीनियर्स एक्स एंड वाई, ठीक है। हमें यहां से एवरेज कैलकुलेट करना है। देखो अब इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है, What is the difference in the average of x and y, मतलब पहले 2 की बात की गई है, x और y, इनका सिर्फ x और y का डिफरेंस यहां से ले लो। देखो
x और y में अगर मैं बात करूं, ये कितना प्लस है? फर्स्ट केस में ये 15 प्लस है, सेकंड केस में ये +2 आ रहा है 37 से 39, थर्ड में ये डिक्रीज हो रहा है 79 से 63 हो गया, तो मतलब ये आपका 16 कम हो गया। फिर 68 से 44 हो गया, 18 और 6 24, मतलब ये -24 हो गया आपका यहां से, ठीक है। उसके बाद 76 से 48 हो गया, तो यहां से ये हो गया आपका -28। फिर 23 से 77 हो गया, तो ये आ गया आपका 4 और 54 आ गया, ये +54 आ गया। और फिर 65 से 38 ये आपका बन गया 27, 27 माइनस का आ गया। देखो इनको ऐड कर लो, ये 4 और 6 और 5 11, हासिल 1, 5 6 और 1 7, टोटल 71 बना। यहां से अगर मैं बात करूं, देखो ये कितना बनेगा आपका, ये आपका बन गया 40, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा आपका 8 7 15, 2 4 1 5, 55। तो टोटल कितना बन गया? 95 बन गया। कितना बन गया? 95। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 24 मिलेगा डिवाइड बाय 7, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूं तो पहले 3 पे डिवाइड, मतलब ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करना, पूरा कैलकुलेट नहीं करना, पूरा कैलकुलेट करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। If in 2019 college X, Y and Z had 150, 250 और 350, X, Y, Z, यहां लिख लेता हूं मैं डाटा 150, 250, X में 150, X में 150, Y में 250, ठीक है। उसके बाद एंड Z में 350 है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड? तो प्लेसमेंट कितने बच्चों की हुई? 350। ये कितना मिला? 350, ठीक है, एक्स वाई जेड से। और ईयर था हमारे पास 2019। 2019 कहां है हमारा? ये रहा, ठीक है। और ये प्लेसमेंट का ही डाटा है हमारे पास। तो सबसे पहले यहां से तो 76% बच्चे प्लेस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से 48% बच्चे प्लेस हुए, उसके बाद 64% बच्चे प्लेस हुए। अब यहां से इस कैलकुलेशन को हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं? देखो मैं इसका सबसे पहले क्या करता हूं, 75% कैलकुलेट करता हूं। 75% कितना होता है? किसी भी नंबर का 3/4। या दूसरा तरीका क्या है? देखो इसका 10% कितना होगा? 15। 15 इंटू 7 करूंगा तो 105 आ गया, और +9, तो मतलब यहां से अगर मैं बात करूं 105 + 9 114, मतलब 114 114 बच्चे प्लेस हुए, 48%। मैं इसका 50% कैलकुलेट करता हूं, इसका 50% किया तो 125। 1% कितना है? 2.5, -5 कर दो 2 करके, यानी कि 120। यहां से कितने बच्चे प्लेस हुए? 120 स्टूडेंट आपके प्लेस हुए, 64%। इसका 10% कितना होगा? 35 होगा। 35 इंटू C करते हैं, 6 करते हैं तो 210, ये बनेगा 1.5 आपका 714, तो ये हो जाएगा 422, 224, 120 और 114, तो टोटल 8, 5, 458, मतलब ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? इन द कॉलेज वाई हैड 200, 200, 300, 150 student graduate in the year 2015 to 2021, then what is the total number of student placed from college Y? बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा था ये, तो उम्मीद करता हूं कि जितना हमने किया वो आपको क्लियर होंगे क्वेश्चन। अप्रोच आपको पता चली होगी कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे अटेम्प्ट करना है। और ज्ञानम आपके लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस मोड में क्लासेस लेकर आया है, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ज्ञानम। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा वेट ओवर हो चुका है, हमारा एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, ठीक है, और शुरुआत हो गई है क्लास। अब आप सब रेडी रहिए कि आपके एग्जाम्स चलते रहेंगे और अब ऐसे आंसर कीज आती रहेंगी और आपको चलता रहेगा। चलिए
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਫ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਫੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਜਾ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, 7 ਨੰਬਰ ਜੈਨੂਅਲੀ ਇਹਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਆਨਸਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਲਾਸ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ, वेदांत हंगल और सलीम अली, जैसे कॉमनली देखे ना तो ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वेदांत हंगल तमिलनाडु, सलीम अली गोवा। तो ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, बी। ठीक है, बी ऑप्शन है आपके। ये सी सेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्लास, याद रखना ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸੈਟ ਹੈ। ਸੀ ਸੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 41 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ 41 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, दूजा क्वेश्चन जैसे देखिए तो ये भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ही हैगा। ठीक है, इकोनॉमी प्लस आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो डील करता है। इसको दा प्लांट कितने बड़ा फेमस है क्लास, वेस्ट बंगाल च है। ठीक है, बिलाई कितने है, रोड किला कितने है, बकारो कितने है। एक क्वेश्चन मोस्टली सानू वैसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर बनूगा ए। ठीक है, इसको वेस्ट बंगाल च है थोड़ा, विश्वेश्वरा है कर्नाटका दे विच। ठीक है, बकारो भिलाई है छत्तीसगढ़ और बकारो झारखंड विच है। ठीक है, जे अगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 दे ते करंट अफेयर तो पूछा गया विवाद से विश्वास, काफी लंबे से हमेशा न्यूज में चल रहा था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है क्लास, ये डिफिकल्ट नहीं है, जर्नलाइज्ड क्वेश्चन है क्योंकि करंट अफेयर अपने अलग अलग सैक्शन चुकता ही है। तो एक करंट अफेयर इकोनॉमी प्लस स्कीम का जो गवर्नमेंट क्वेश्चन है वो तो आया है डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट, डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो करंट अफेयर का क्लास। एक क्वेश्चन तुम ये कह सकते हो कि थोड़ा जा टफ है, ईजी नहीं है। सब तो पहले तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो पता ही नहीं है कि इदा के होंगे भी है, कद शुरू हुए ने। तो पहली स्टेटमेंट ठीक सी 2019 स्टार्ट हुई सी, यूथ एंड अफेयर जी मिनिस्ट्री साडी ओनू दिंदी है। दूजा इन्हां दा काम क्या है, आइडेंटिफाई एंड नर्चरिंग द बडिंग एंड यूथ टैलेंट। कोई ऑर्गेनाइजेशन वो देखती है कि अच्छा ये पोटेंशियल है, एथलीट या स्पोर्ट्स परसन कुछ कर सकता है, तो उन्होंने असी अगे की तरफ प्रमोट करांगे। तो और इहो जी एसोसीएशनस नूं ये अवार्ड दिंदी है। इन्हां दा तीजी स्टेटमेंट गलत सी क्लास। इन्होंने कहा कि 2021 का राष्ट्रीय प्रोत्साहन जो पुरस्कार है वो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नूं मिले, गलत है। ये मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नूं दिता गया सी। तां आंसर हो जाएगा इसदा ए। 1 और 2 स्टेटमेंट ओनली 2 है, तीजी गलत हैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास, तुहानूं वैसे भी पता होना चाहिए, अगे वास्ते पेपर वास्ते भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप, नेक्स्ट फुटबॉल के वर्ल्ड कप, हॉकी के वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी, जूनियर फीफा, जिन्ने भी तुहानूं लगदे इंडिया कोल हैगे ने पढ़ के रखो। ठीक है, इसदा आंसर सी 2026। ठीक है, वर्ल्ड जोड़ा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होना है वो तुहाडे 2026 होना है इंडिया। ठीक है, चलिए जी 22 भाषाओं को समझने के लिए जो एप्लीकेशन हमें दिया गया है वो आपका कौन सा है, सी भाषा संगम। ठीक है, दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज क्लास, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं हर बार पहले भी पेपर तुहानूं करांदा ही रहा, कहा भी सी कि डिफेंस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश ਇਹਦਾ मेंबर नहीं है, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स है। बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड ये इनिशिएटिव कौन सी समिट ने अनाउंस किया था, तो ये G7 थी क्लास। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी मैं कह सकता हूँ भाई ठीक है, हम कई बार G7 के मेंबर पढ़ जाते हैं लेकिन कई बार हम इतना इनिशिएटिव थीम नहीं पढ़ पाते, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मैं कह सकता हूँ। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेनिक गार्डन ये आपका कहाँ बना है, देहरादून। फैक्चुअल क्वेश्चन है क्लास, करंट अफेयर में चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम क्लास देखते हैं आपका 50। ठीक है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आपकी कौन सी 2 जो हैं वो यूज की गई हैं। तो वो आपको कह रहा है, देखो 4 हैं आपके पास कि इनमें से कौन सी आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, उजाला स्कीम पूछी गई है, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स कह रहा है, स्वामिता कह रहा है, तो नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। हम बच्चे कई बार ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि सारा कुछ अटैम्प्ट कर लिए, बट ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ बढ़ाते हैं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं कि संविता है कि है ना, अदे ਨੂੰ पता ही नहीं होगा कि रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम वास्ते हैगी है या नहीं हैगी है, किस वास्ते बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन तक तुम पहुंचे नहीं पहुंचे तो पता नहीं लगता। तो इसका आंसर है 1 और C। ठीक है,
यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहली और चौथी स्टेटमेंट ठीक हैगी है दी सी ऑप्शन हो गया था पंजाबे का। ठीक है, फर्स्ट लिविंग रोबोट्स कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ज़ेनोबॉट्स, बहुत आसान क्वेश्चन था क्लास, फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर तो आसान क्वेश्चन है। परम गंगा, यह तो मैं पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आप ही कराया होना। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हैगा, ठीक है, सी ऑप्शन हैगा। स्पेस एक्स रिसेंटली मेड हिस्ट्री, दुनिया को पता सी ये होया, इंस्पिरेशनल 4, बहुत आसान क्वेश्चन सी क्लास, रिपीटेड क्वेश्चन सी। नेक्स्ट सी रायसेना डायलॉग, वो कहता कि इंडिया का फ्लैगशिप कंसर्न है फॉरन प्रोग्राम का, यदा 7th एडिशन 2022 च होया, यदा 2017 विच तुसी स्टेक है। तो तुसी क्वेश्चन दे स्टेटमेंट 2 और 3 देखोगे तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो पता लग जाएगा। ठीक है, यदा आंसर है 1 और 2 स्टेटमेंट है जी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा यदा 54। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट बहुत न्यूज में रहा था कि केड़े पहले डेफ एक्टर ने जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड मिले ने, टॉरी कॉस्टर। ठीक है, सी बी ऑप्शन सी। 56वें का देखते हैं कि 6000 बैरल क्रूड ऑयल सी विच लै गया जिन्हें एनवायरमेंटल एमरजेंसी लगाई क्लास, ये भी न्यूज़ बहुत वड्डी सी, मैं डिफिकल्ट कैटेगरी च नहीं काउंट कर सकता। वर्ल्ड अफेयर की न्यूज़ सी पेरू। ठीक है, आंसर राइट आंसर है सी पेरू। चलिए, जनजातीय गौरव दिवस आपके किसके लिए बनाया जाता है? बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है। बी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, 57 आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं क्लास। विच इकोनॉमिस्ट हैज चूज द रिसीव द मैल्कम एडिसिया अवार्ड 2022? प्रभात पटनायक। ये मैंने अपने करंट अफेयर्स में करवाया हुआ था क्लास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा भी था कि पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली अगर कोई इकोनॉमिस्ट आपका रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, कोई इंटरनेशनल अवार्ड किसी इंडियन पर्सनैलिटी को मिल जाता है, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। तो आगे के लिए प्लीज इसका ध्यान रखें। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इदा के जोड़े एसोसीएशन हैगी है जिन्हें पेपर लेता है, उन्हें डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट कई जगह तो किए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, वैसे चलिए जी, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, कि सैक्स रेशो इंडिया की कद इंप्रूव होएगी, तो आंसर है डी 2036 विच। ठीक है, नेक्स्ट उन्हें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर कंसिडर्ड टू बी द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी? हिमालय का आंसर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिमालय हॉटस्पॉट नहीं है, यहीं से आपका ऑप्शन खत्म हो जाता है। जहां जहां 3 था उसको एलिमिनेट कर देते, आंसर हो जाता सी। थोड़ा सा भी ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी होती ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लोगों को लगा होगा कि पता नहीं इसमें क्या ही पूछ लिया है, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी के अंदर हिमालय का नंबर नहीं आता है। 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करते, मुझे चाहे बाकी नहीं भी पता थे, ऑप्शन से एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो रहा था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ असर्शन रीजन्स। ठीक है, कि डायोक्सिन्स जो हैं वो बायोक्यूमुलेट्स होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम लो लेवल के। डायोक्सिन्स आर क्रिएटेड मेनली बाय द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड मेडिकल वेस्ट कंटेनिंग क्लोरीन। ठीक है, तो यदा आंसर हो जाएगा बी। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू ने, लेकिन एक दूसरे की ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ने। ठीक है, चलिए जी, उस तो बाद असं देखने हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। जोग्राफी तो हैगा, बहुत आसान क्वेश्चन सी क्लास, सिंपल जी गल है कि हीट पंप्स और थर्मल कन्वेयर होंगे प्लैनेट के आपके ओशन करंट, नाले हीट ट्रांसफर का काम भी करते हैं ट्रॉपिक्स टू पोल। यही मूवमेंट है ना, वार्म करंट और अपनी कोल्ड करंट की जी मूवमेंट है वो हीट एक्सचेंज ही तो करा रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आंसर यदा सी ए, दोनों स्टेटमेंट आपस में ट्रू सी, नाले एक दूसरे की सही एक्सप्लेनेशन सी। नेक्स्ट सी कि बायोम्स की ਤੁਹਾਡੀ ट्रू एक्सप्लेनेशन की है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बायोम्स आर कैटेगराइज्ड बाय द मोस्ट कॉमन ग्रोथ फॉर्म्स प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन अक्रॉस द लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। 63 द ए। चलिए जी, नेक्स्ट मतलब चारों स्टेटमेंट जी ट्रू है क्लास। ठीक है, ए स्टेटमेंट आंसर सी है, चारों स्टेटमेंट ट्रू सी। चलिए जी, 64 की COP 26 जी कॉन्फ्रेंस ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ है हली। ठीक है, कि ये बारे जी की डैक्लरेशनस ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, तो यदा आंसर है सारी स्टेटमेंट की ट्री है। ठीक है, कि इंडिया 2070 तक ਤੁਹਾਡਾ नैट जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन से चला जाऊगा। ठीक है, ਇਹ दो जोड़े क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ साइंस से पूछे गए ना क्लास, ये डिफिकल्ट है, मैं कह सकता कि ये सौखे क्वेश्चन नहीं सी, ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ डिफिकल्ट लैवल तक जो तुम इन्ने लैवल से कभी साइंस पढ़ी होएगी, जो इन्ने डिटेल च करंट अफेयर साइंस का पढ़िया होगा, साइंस एंड टैक का तभी कर सकते सी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ हैगा नैनो पार्टिकल्स के उत्ते। ठीक है, इधर राइट आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बन जाऊगा क्लास बी 1, 2 और 3। चौथी स्टेटमेंट क्लास गलत है। नैनो पार्टिकल्स कैन रिमेन सस्पेंडेड इन सॉइल वाटर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ओनली, रिएक्ट विद द टारगेट मॉलिक्यूल्स इन द सेट प्रोसेस। तो ये लंबे समय तक रहते हैं, शॉर्ट समय के लिए नहीं रहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्लास, जो तुम ध्यान दोगे थोड़ा जा जोग्राफी का है। एटमोसफेयर तो क्वेश्चन पूछा गया कि मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर ਤੁਹਾਡੀ की काम करती है। ठीक है जी, तो ਤੁਹਾਡਾ जो 66 का आंसर हो जाऊगा डी। ठीक है, तो ए का 3 हो जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है, कि ਤੁਹਾਡੇ मीजोस्फेयर ਵਿੱਚ मीटियोराइट्स बर्न हो जाते हैं
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦਾ B 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ D। ठीक है जी, चलिए 67 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ which of the following is extinct species। अब क्लास ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा कि ऑलिव रेडली सी टर्टल ਇਹਦਾ ਤਾਂ बहुत बड़ा हब हैगा ਤੁਹਾਡੇ उड़ीसा ਵਿੱਚ, ठीक है ना। तो भितरकनिका इज वेरी फेमस फॉर दिस। तो ये पता होना चाहिए था कि ये एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज नहीं है। तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस बिना क्लास ਤੁਹਾਡਾ पेपर क्लियर करा सकती सी, इन्ना डिफिकल्ट भी नहीं सी, ठीक है। जे ਅਸੀਂ मॉडरेट लैवल ਤੇ भी देखिए तो 70 नंबर तक जाना कोई औखा काम नहीं हैगा, चला जाऊगा। 68 दो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैगी ने, तीजी स्टेटमेंट गलत है। इक्वेटर के हिसाब नाल नहीं झुकी हुई धरती, कई लोगों को लग्या होगा स्टेटमेंट ठीक है 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, बल्ले आंसर चक के मारे चक हो गया, ऐसा है नहीं। तीजी स्टेटमेंट यदि गलत है, इक्वेटर के हिसाब नाल नहीं झुकी हुई, अपनी एक्सिस के हिसाब नाल झुकी हुई, इक्वेटर तो नहीं हैगी, ठीक है जी। चलिए तो 1 और 2 स्टेटमेंट सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਪਥੀਰੀਆ, ਪੋਲੀਮੈਟਾਈਟਿਸ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 69 क्वेश्चन है ਉਹਦਾ आंसर हो जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ डी, ठीक है जी। वैसे तो बी होएगा जी 1 2 और ए आंसर होएगा जी पोलियो ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, पोलियो कंटामिनेटेड वाटर तो नहीं ਹੁੰਦਾ, बैक्टीरिया टाइफाइड इन्फेक्शन ए आंसर आऊगा जी 69 ਦਾ ए आंसर है, ठीक है। चलिए जी उस तो बाद 70 क्वेश्चन। अब ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆंसर ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ठीक है। इस सीक्वेंस होएगा ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਨੇ, ठीक है 61 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਸੀ, ठीक है। उस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ 1904 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, 1905 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1911 ਵਿੱਚ ਸੀ, ठीक है। चलिए जी ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ 2 स्टेटमेंट ट्रू है, तीजी रेमिटेंस ऑफ फाइन इज ऑलरेडी बीन नॉट रियलाइज्ड, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ठीक है। नेशनल कांग्रेस माइट कंटिन्यू सिविल डिसओबीडियंस, नहीं जी। सिविल गांधी इरविन पैक्ट की पहली कंडीशन ही ऐसी कि वो सिविल डिसओबीडियंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लाओ, हड़प्पा तो बाद मोहिंजोदारो, 3 तो बाद ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ स्टेटमेंट, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। 1921 ਤੁਹਾਡਾ मोहिंजोदारो हड़प्पा ਸੀ, 22 ਤੁਹਾਡਾ मोहिंजोदारो। आसान क्वेश्चन ਸੀ, बहुत आसान क्वेश्चन ਸੀ। वर्धमान महावीर ने 28 साल तो बाद ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 12 साल प्रैक्टिस की, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਵਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸਾਨ क्वेश्चन है, बाकी तो ऑप्शन ਦਾ ਕੋਈ सिस्टम ही नहीं बनता। महाघोष, सिद्धार्थ, घोर, अग्निग्रीसा, पहले चौथे ਵਿੱਚ कन्फ्यूजन ਸੀ, ਜੇ थोड़ा बहुत ध्यान ਨਾਲ पढ़िया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ आसान क्वेश्चन ਸੀ कावल्य, बहुत आसान क्वेश्चन ਸੀ हिस्ट्री ਦਾ। चलिए जी गुणाढ्य वॉज रिटन बाय, ये बृहत कथा है क्लास, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं ये कह सकता हूँ, इतना इन डेप्थ कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। बी ऑप्शन था इसका। चलिए जी ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ जीके ਦੇ क्वेश्चन है। 75वां क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ आंसर हो जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ डी, ठीक है जी। मैच द फॉलोइंग द टर्म से क्वेश्चन ਸੀ ਸਿੰਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਸੀ 76वां, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 1919, ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰਾ 1914, ਜੈਟੋ ਮੋਰਚਾ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 1921 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है 76 ਦਾ आंसर ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 77, द इंडियन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अबॉलिश द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ਸੀ, सी आंसर हो जाऊगा, ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो ਤੁਹਾਡਾ 78वां क्वेश्चन है, ਇਹਦਾ आंसर हो जाऊगा क्लास सी, ठीक है जी, कि गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ क्वेश्चन, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ क्वेश्चन ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ठीक है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सी, ठीक है जी। चलिए जी मसान सिस्टम ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, डी ऑप्शन हो जाऊगा, ठीक है। 81 ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, कैप्टन एलार्ड एंड जीन बैप्टाइस्ट वेंचुरा, ठीक है। इसमें से तो कैप्टन एलार्ड का कई बार हम पढ़ते भी हैं, हिमाचल हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पंजाब हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, चंबा की रानी से इनकी शादी हुई थी, ठीक है, पढ़ लेना, कई बार आता है। फाउंडर ऑफ न्याय सिस्टम ऑफ लॉजिक गौतम ऋषि, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, बड़ा आसान है, ठीक है ये, ठीक है। चलिए 83 क्वेश्चन को देखते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला सेंट्रल फिगर थे, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, लॉर्ड कॉलिन कैम्पबेल के साथ इनका डिप्लोमेटिकली काफ़ी बार पिस्ट बैटल हुआ। अगली 2 स्टेटमेंट्स इसकी ब्रिटिश ऑफिसर मिलिट्री कमांडर है, प्रेस द मिलिट्री, जो थोड़ी स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, कि उन्होंने उसको प्रेस किया था, लेकिन वी डी सावरकर ने कभी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, तो 4 स्टेटमेंट गलत है। 3 ऑप्शन लास्ट के इसमें 4 आंसर तो वैसे ही गलत होगी, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਜੀ 84ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋ ਸੋਵੀਅਟੀਅਨ ਫਰੋਮ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਐਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ। ਤਾਂ ਆंसर ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 84 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ चले जी। उस तो बाद 85 स्टेटमेंट पूछी गई है प्रेसिडेंट की कि सैशन तो ना हो तो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी तो सैशन खत्म हो जाएगा। नहीं जी 6 वीक वास्ते लागू होता है, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूजा ऑर्डिनेंस पावर मेकिंग टू प्रेसिडेंट इज पार्लर पावर लेजिस्लेशन रिस्पेक्टिव वेदर द पार्लियामेंट इज सेशन और नॉट। ऐसा नहीं है जी, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ तब हो सकती है जब वो सेशन में नहीं होता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत से डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जी फेडरल कोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डी ऑप्शन हो जाएगा। चार्टर एक्ट की गल करते हैं क्लास, उन्होंने पूछा कि किहड़ी स्टेटमेंट तुहाडे कोल करैक्ट नहीं हैगी है, तो तीजी स्टेटमेंट क्लास कोई डेप्यूटी गवर्नर का सिस्टम नहीं सी। 1933 विलियम बेंटिक ही सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई सी, नाले विलियम बेंटिक ही पहले भारत के गवर्नर जनरल बने सी। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक सी, तीजी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। चले जी 88वां क्वेश्चन देखते हैं क्लास कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैफर्ड मिशन भेजा, गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन दी है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पूर्ण स्वराज की मांग। तो सब तो पहले तुहानूं पता ही चौथा ऑप्शन है कि तुहाडी सब तो पहले पूर्ण स्वराज की मांग हुई सी। ठीक है, उस तो बाद तुहाडा स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आया सी 1942 में, फिर क्लेमेंट एटली 1946 में तुहाडे प्रधानमंत्री बनते हैं, नाले उस तो बाद तुहाडी कैबिनेट मिशन प्लान मई 1946 में आती है। ठीक है, तो तुहाडा राइट सीक्वेंस इहदे विच हो जाऊगा डी। ठीक है 4 1 3 2। चलिए जी नेक्स्ट तुहाडी स्टेटमेंट दी हुई है कि पहला सैशन होया तुहाडा 9 दिसंबर तो 23 तक। उस तो बाद सच्चिदानंद सिन्हा तुहाडे कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के पहले सीनियर मोस्ट चेयरमैन बंदे बने। 10 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद ने तुहाडा कमेटी ऑफ रूल्स के उत्ते काम किया। 13 को तुहाडे जवाहर लाल नेहरू जी ने असैंबली की ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन पास की सी। ठीक है जी, तो ये तीजी स्टेटमेंट क्लास साडी गलत हैगी है। ठीक है, तो 1 2 और 4 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी 90 क्वेश्चन देखने हैं क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पंचायती राज। दो तो सबनों ही पता होनी है, बलवंत राय मेहता ते नाले अशोक मेहता की कमेटी, तो 1 और 2 तो है ही है। 3 और 4 की जिन्होंने कन्फ्यूजन सी होता ही क्वेश्चन गलत होगा, अदरवाइज तो ऐसी कोई गलती नहीं सी। सब 1 2 और 4 LM संघवी कमेटी तुहाडी पंचायत नाल सी, हनुमंता राव कमेटी तुहाडी इहदे नाल एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, चलिए जी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की पहली स्टेटमेंट ठीक है जी, कोई बिना पार्लीमेंटरी तो सी नहीं निकाल सकते। ठीक है, मनी नहीं निकाला जाएगा। ऑल रेवेन्यूज आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, सारे दे विच जांदे ने। ऑल मनी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड शुड बी स्पेंट आफ्टर प्रॉपर अप्रूवल ऑफ लोक सभा। तो स्टेटमेंट गलत है क्लास। ठीक है, कुछ काम इदा दे जिहदे विच तुहानूं लोक सभा की परमिशन की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेजिडेंट को सैलरी देनी उहदे वास्ते तुहानूं जरूरत नहीं पैंदी। ठीक है, फिर वो कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल 267 है, तो गलत है जी 266 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है तुहानूं इहदा आंसर जो हो जाएगा, लास्ट 2 स्टेटमेंट गलत है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा सी। चले जी मॉन्टेक क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आंसर सी हो जाएगा। अटर्नी जनरल के लास्ट स्टेटमेंट गलत है, वोट कास्ट नहीं कर सकता, तो आंसर हो जाएगा तुहाडा ए। ठीक है जी, तुहाडा जो 93 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3। ठीक है जी, चलिए उस तो बाद तुहाडा 94 क्वेश्चन कि GDP तुहाडा इंक्रीज करने की मैन्युफैक्चरिंग की गल की 2022 की, तो 25% के आसपास परसेंटेज के हिसाब नाल गलत है। एक क्लास फैक्चुअल क्वेश्चन ने जिहदा तुसीं ज़्यादा ध्यान नहीं देंदे, इनफैक्ट कोई भी ध्यान नहीं दिंदा कि इन्ना कौन परसेंटेज का या नंबर का रट्टा मारदा है, बट चलो क्वेश्चन पूछ लिया गया सी। अगली स्टेटमेंट तुहाडी गलत है क्योंकि इन्हें 150 मिलियन नहीं 100 मिलियन जॉब्स की गल की है। ठीक है, तो जो 94 का तुहाडा आंसर की हो जाऊगा 3 ओनली। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए 94 तो तुहाडा हो जाएगा बी। चलिए जी 95 क्वेश्चन। ठीक है, नीति आयोग गुड गवर्नेंस के लिए यूज हो रही है। ठीक है, एने तुहाडे जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उन्होंने भी सबस्यूम किया, तीजी स्टेटमेंट भी ठीक है। दूजी भी यदा काम है कि होलिस्टिकल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए है। ये 3 रिसर्च विंग के काम तक करता, लेकिन कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कराता क्लास, यदा काम नहीं है, वो इंटर स्टेट काउंसिल का काम है। तो 95 जो तुहाडी चौथी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 0 कूपन बॉन्ड करेक्ट। ठीक है, तो 96 का ए आंसर हो जाएगा द बॉन्ड विद 0 कूपन रेट्स विच सोल्ड एट द प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, इन्वेस्टर गेट द फेस वैल्यू ऑफ इट मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए जी ये आसान क्वेश्चन सी क्लास बड़ा। फर्स्ट वाटर प्लस सिटी तो तुहानूं सबनूं पता ही होगा, इंदौर 97 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 सोन चिरैया। अब देखो हाउसिंग और अर्बन अफेयर लिखा सी, तो आंसर बड़ा सिंपल सी, अर्बन हाउसिंग सेल्फ ग्रुप्स। ठीक है जी, मनरेगा का
ठीक है जी। 100 दिन ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 1/3 ऑफ बेनिफिशियरी शुड बी वीमेन, फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज आपका डीपीएसपी। और ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए नहीं है क्लास, इसमें कोई भी गांव का बंदा इसमें एनरोल्ड हो सकता है। तो चौथी स्टेटमेंट गलत थी, आंसर हो जाएगा बी 1 2 3। चलिए जी, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो 100 क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा लेन देन के हिसाब से रहा था। फेमस से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज है, बी का 1 था तो बी का 1 एक ही था, डी आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, ये फैक्चुअल डाटा अगेन क्वेश्चन है क्लास, इसमें सिर्फ फिस्कल डेफिसिट 2 ओनली है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट 3.6 लिखा हुआ, 3.8 था। प्राइमरी डेफिसिट 4 लिखा हुआ, 2.8 है। तो ये भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट है क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है क्लास, ऐसे क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं बनता। बट चलो ठीक है, एग्जामिनर चाहता है कि सारे क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट ना करे ना, कंपटीशन फेयर बना रहना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस बीच में आते हैं। साइंस का क्वेश्चन से क्लास, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ने तो सीधे अपेयर करवाना सन दे अर्थ दे राउंड, तो जीरो रिलेटिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ π/12 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सबनों ही पता है, ब्रह्मोस इज द सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लास स्टेटमेंट तो बड़ी लंबी रहती है, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन सी कि हुबल टेलीस्कोप का आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो टेलीस्कोप उसने रिप्लेस किया, तो आसान ए था 104 का ए। गोल्डन राइस ये डैफोडिल है इसका आंसर क्लास, इसने कंट्री ना पूछ के इस बार इसका बीच का इंटीग्रेटेड मटेरियल ही पूछ लिया, ठीक है, डैफोडिल इज आंसर। नेक्स्ट एडिस अगेप्टी, ये एक बायोटेक फर्म है जो क्लास इसके मेल मॉस्किटोज के ऊपर भी काम कर रही है कि इनको जो उनका फर्टिलिटी रेट है उसको कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली ध्यान देखा जाए तो जो बीमारियां आपकी मच्छरों से होती हैं वो आपको यहाँ पूछी गई थी, तो जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, तो मॉस्किटो से कोरिलेट करते तो आंसर निकल जाता क्लास, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए जी, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो बहुत सिंपल है, बोन आप जो मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो एडुकैनोमैब, ये एक एड्यूलैम की जो रिसेंटली रिसर्च थी, तो इसने जो रिसेंटली एक मेडिसिन बनाई है वो किसके लिए बनाई थी, अल्जाइमर के लिए बनाई थी। चलिए जी, कोमेमोड्रेस कोहेसिव कोलैबोरेशन, ये थीम थी आपकी मिलान 2022 की, पढ़ा होता तो ही पता लगे, डिफेंस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आ चुके क्लास। सो पावर राइवलरी इंडियन ओशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है क्लास मेरे ਵੱਲੋਂ, इसी क्वेश्चन ਦੇ स्टैंडर्ड ਬੰਦਾ ਸੀ, क्योंकि तकरीबन सारी जगह ਤੇ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, बट क्वेश्चन ਇਹ ਸੀ कि मिलिटरी बेस की गल सी ਜਿਹਦੇ ਤੇ क्वेश्चन पूछा गया था। ਇਹਦਾ आंसर ਇਹਨੇ वैसे तो मालदीव लिखना चाहिए सी, उन्हें कन्फ्यूज करने वास्ते मराओ आइलैंड का ऑप्शन पाता, वैसे मालदीव्स लिखना चाहिए सी, क्योंकि बाकी 3 क्वेश्चन जो ऑप्शन सी उन्हें कंट्री के तौर पर लिखे सी, तो आंसर हो जाएगा था बी। चलिए 111वें का अशोक चक्र, बड़ा आसान क्वेश्चन है, गैलेंट्री अवार्ड का पूछा सी। पहला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सपोर्ट सेंटर तुहाडे पंजाब च खुलिया है, ठीक है। बिटकॉइंस बड़े ट्रेंड में हैं, सातोशी नाकामोटो जिन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद थे आपके पास जो थर्मल पावर प्लांट्स के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपके जो कोड्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जो आपके पास करेक्ट मैच नहीं है वो इनौर थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश का है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। मौजली ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन, अब रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा असम, ठीक है, अभी डूबा ही पड़ा है, असम में बाढ़ आई हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास पासेज और लोकेशन थे, जैलीपला आपका सिक्किम में है, माना उत्तराखंड, 2 तो सबको ही पता थे, 2 पता होते तो आपका आंसर निकल गया था, ठीक है। सो आंसर 116 का आंसर हो जाएगा थोड़े गोल सी, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लास बिल्कुल सीधे सीधे सी, गुज्जर, बोटिया, थारू तुम्हें नॉर्थ जोन में मिलते हैं, गारो, कासी, कुकी, चमका ये नॉर्थ ईस्ट, ये तो हिल्स के भी नाम है, संथल, गोंड, भील, कोल ये आपके सेंट्रल जोन में पाए जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। टोडा आपका कहाँ पाया जाता है, साउथ में। तो सारी स्टेटमेंट्स 1 2 3 के सीक्वेंस में चलनी थी आपका, या आपके पास डी ऑप्शन हो जाता। 118 का भी आसान था क्लास, नंदा देवी त्रिशूल केदारनाथ भारत में है, मकालू इज इन नेपाल, ठीक है जी। चलिए 119 को देखते हैं कि नर्मदा ताप्ती रिवर जो डेल्टा बनाती है वो कैसा बनाती है, एस्चुरियन डेल्टा बनाती है, एस्चुरीज बनाती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, लोकल विंड्स का, ठीक है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड है, ठीक है, यामो जापान थी, बुरान साइबेरिया थी, तो इसका जो 120वें का आंसर हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सो क्लास दिस इज ऑल वी हैव। सो आई विल से कि अगर आप थोड़ा सा अच्छी से ढंग से प्रिपरेशन करते तो पेपर अटेम्प्टेबल था। कंपटीशन फेयर मेंटेन करने की कोशिश किया पंजाब सरकार ने, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था, ये मुझे चीज़ सबसे अच्छी और खूबसूरत लगी कि पेपर को उस तरीके से डिजाइन आउट किया गया कि सारा का सारा पेपर कोई अटेम्प्ट ना करे, एक फेयर कंपटीशन बने। सो इफ आई हैव टू मार्क आउट द कट ऑफ, तो ये 70 के अराउंड रहनी चाहिए कट ऑफ क्लास, +- 3 ले लो आप मेरे हिसाब से, 67 to
मैक्स 75 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए इफ इट इज गोइंग फेयर एंड टेक्निकल, ठीक है। लेट्स आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको इसमें जो इसके आंसर की उसको अटैच करा दूंगा। इफ यू फील एनी डाउट, एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द क्वेश्चन, फील फ्री टू कमेंट इन टू द सेक्शंस, वी विल डेफिनेटली गोना रिप्लाई यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।